حسن کاظمی، وہ اگر اویلیبل ہو تو اس کو بلائیں۔ شاہ شاہ جی جی اس اب کے تو اس لیے کے ہم ساتھ کافیہ ایک اس کے ساتھ غالی راوی اور مل گیا، وہ جو عمرزم اور بابا کوکی کے نام سے جو ہے نا وہ آج کل آ رہا ہے، ایک رافضی اور مل گیا اس کے ساتھ۔ نہیں شاہ جی وہ السلام ساری علیکم۔ ٹیم، یہ ساری ٹیم رافضیوں کی ہے نا، جی شاہ جی۔ جو کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جی ہم مرزا جونیئر جیلمی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہیں وہ سارے رافضی ہیں، یہ پوری ٹیم رافضیوں کی ہے۔ آگے بیٹھا ہوا تو ادھر نا بڑا چوڑا ہو گیا نا ادھر شرطا کی براڑ پہ نا، تو میں پھر گیا ہوں، میں نے پھر جا کے وہاں پہ پھر تھوڑی سی اس کی کھولی ہے میں نے وہ گٹھری جو ہے، تو بھاگ گئے پھر وہاں سے، نہیں جی نہیں ہم نے یہاں پہ بات نہیں کرنی۔ میں کہا جی یا تو ہماری براڈوں پہ بھی آتے نہیں، ہمیں اپنی براڈوں پہ بات نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے نا، تو بنے گا کیا پھر؟ اچھا یہ ایک سوال ہے، چونکہ میں اس ویڈیو پر تیاری کر رہا تھا تو اس سوال کا جواب بیچ میں شامل کرنا ہے۔ یہاں میں ویڈیو دوبارہ پلے کر دیتا ہوں، تو یہ جب بھی کسی کی براڈ پر کوئی بھی مرزئی رافضی آئے تو اس سے یہ سوال لازمی کرنا ہے کہ تم لوگوں کے نزدیک ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ مرزا جونیئر جیلمی جو ناسبی کہتا ہے، ناسبیوں سے مراد کون ہے؟ یہ حسن کاظمی جو رافضی ہے، جو مرزا جونیئر جیلمی کا صحابی ہے مرزئی، تو جو کہ سوشل چوائس اور خلیفہ وقت اور ایک دو آئیڈیوں کے نام سے آتا ہے، تو اس نے یہ جو آصف بیٹھا ہوا ہے ابو حسین، اس کو واضح طور پہ کہا کہ تم ناسبی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ ناسبی تو کہہ دیا، لیکن یہ صرف بریلویوں کو ناسبی مانتے ہیں یا دیوبندیوں کو بھی، وابیوں کو بھی، سب کو ناسبی مانتے ہیں؟ یہ سوال مرکزی ہے، یہ تو پہلے ویڈیو سن لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو غلام القادیانی دجال کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن و سنت کی جو محکم دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں، ان دلائل سے تمام گمراہ فرقوں کا رد ہو رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے صرف ناسبیت کا رد نہیں ہو رہا، قادیانیت کا بھی رد ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ناسبی بھی منکرین حدیث ہوں گے اور قادیانی بھی منکرین حدیث ہوں گے۔ ہاں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ناسبی منکر حدیث ہوں گے۔ وہ ناسبی کون ہے؟ ان بندوں کی تلاش ہے۔ آیا یہ مرزیوں کے نزدیک، رافضیوں کے نزدیک یہ سارے بریلوی، دیوبندی اور وابی، کیونکہ رافضیوں کے علاوہ یہ تین بچتے ہیں، کیا یہ سارے ناسبی ہیں؟ اور مرزا جونیئر جیلمی والے خصوصی طور پہ ہمیں یہ بتائیں۔ یہ میرا سوال ہے، یہ سوال اصل میں لے کے میں حاضر ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ کوئی جواب اس کا مل جائے کسی مرزئی سے، تو چلو وہ ویڈیو کے اندر شامل کر لیں۔ شاہ جی یہ دراصل مسلمانوں کو ناسبی یہ پتہ کیوں کہہ رہا ہے اور حدیث کا منکر کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو ضعیف حدیثیں اور تاریخی حوالے مرزا انجینئر نے دیے نا، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی کو ملائم کرنے کے لیے جو اس نے حوالے دیے ہیں نا، وہ ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی سند کیوں نہیں تم پیش کرتے؟ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں مسلمانوں کو، چاہے بریلوی ہوں، چاہے وہابی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، ان کو یہ ناسبی کہتا ہے۔ نہیں یہ واضح ایک سٹیٹمنٹ چاہیے نا، وہ تو مجھے پتا ہے اشارے کنایوں میں تو ہم سب کو وہ ناسبی کہہ رہے ہیں، لیکن واضح ایک سٹیٹمنٹ چاہیے کہ نام لے کے مینشن کرے کہ یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ وابی، یہ سارے ناسبی ہیں۔ ایسے نہیں، یہ کہانی، یہ تو ایک کہانی ہو گئی۔ ہاں جی، اب یہ جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے کہ یہ ناسبی جو ہوتے ہیں، یہ سارے آپ دیکھیں گے کہ ناسبی جو ہوتے ہیں وہ سارے منکر حدیث ہوتے ہیں، تو وہ ناسبی اس نے کس کو کہا ہے؟ کون ہے؟ ایک ناسبی کا تو اس نے ذکر کر دیا ہے، قادیانیوں کا، لیکن وہ دوسرے ناسبی کون سے ہیں؟ کوئی اور بھی قادیانیوں کے علاوہ جو دوسرے ناسبی ہیں، چونکہ دو ناسبیوں کو اس نے ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارا ایک سوال ہے بھائی ادنا سا۔ کوئی بھی انجینئر مرزا جونیئر جیلمی کا اسٹوڈنٹ، فالور، صحابی، امتی، مرید،
شگرد، کوئی چمچا کڑچھا، کوئی چھلتر، کوئی چھوکرا؟ آ جاؤ بھائی جواب دے دو. بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، معصوم آنا، فقیر آنا، مولوی آنا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. جی جی. ایک ویڈیو بھیجی تھی آپ کو، میں 3-4 دن ہو گئے، مرزے کی نا، ہوں. جس کے اندر یہ بول رہا ہے کہ فضائل اعمال جس نے لکھی ہے اس کا دماغی توازن خراب تھا. ہوں. جی جی. تو اس کے اندر سے بڑی بکواسات اس نے کی ہیں ہوں. کہ کیا قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے سے ثواب ملتا؟ یہ سوال بہت عرصے سے ادھار تھا مجھ پر. یہ ایسی ویڈیو ہے. یار یہ میسج سینڈ نہ کرو یار علی. اچھا ٹھیک ہے، بات کریں. جی جی. اچھا. ایسی ویڈیو کے اندر حدیثیں ہیں پاک لگائی ہوئی ہیں، اس کا آدھا ترجمہ کیا ہے، آدھا کیا ہی نہیں ہے اس نے. ہوں. تو اس ویڈیو کا کوئی تھوڑا سا تشریح کر دیں جب آپ کو ٹائم ملے تو. دوبارہ بتائیں، مجھے نہیں سمجھ آئی، توجہ میری کہیں اور تھی. یہ ویڈیو ہے، اس کا یہ سوال بہت عرصے سے ادھار تھا مجھ پر، کیا قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنے سے ثواب ملتا؟ ہوں. فضائل اعمال جس نے لکھی ہے اس کا دماغی توازن خراب تھا. اچھا. یہ اس نے ٹائٹل لگایا ہوا ہے اس ویڈیو کے اوپر، اور وہ اس کے اندر وہ بکواسات کر رہا ہے. وہ ہوں. 4 حدیثیں اس نے لگائی ہوئی ہیں، اس حدیثوں کا ترجمہ اس نے آدھا کیا ہی نہیں ہے کمپلیٹ. ہوں. تو یہ بکواسات ہی ادھر کر رہا ہے. ہوں. اللہ کی گستاخی اس نے کی ہوئی ہے اس کے اندر. بات تو یہ ہے کہ محترم ساجد صاحب گزارے یہ ہے کہ اس کی کس کس چیز کا ہم جواب دیں یا جواب طلب کریں. سوال تو یہ ہے میرے بھائی، یقین منیو میں کتنے چیلنج کیے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں کہ جب کوئی مرزائی آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھو جو تمہیں اچھی لگتی ہے نا جو ویڈیو مرزا جونیئر جیلمی کی کہ تم کہتے ہو بڑی اچھی یہ ویڈیو ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یا تم کہتے ہو جی میں نے اس کی جتنی ویڈیو سنی ہے وہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، یا مطلب وہ بڑی اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، تو میں آگے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھو جو تمہیں پسند ہے نا جو ویڈیو ہاتھ رکھو، وہ ویڈیو چلائیں گے. اور پھر جب کوئی کلپ ہم پیش کرتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک کلپ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی پوری ویڈیو چلاؤ. اب یہ مسئلے ہیں نا، میں کلپ کا جواب دوں گا تو پھر بھی یہ بھاگیں گے، میں پوری ویڈیو پر بات کروں گا پھر بھی یہ بھاگتے ہیں. بتائیے ان کو کیسے پکڑا جائے؟ اس کا حل پہلے تلاش کر لیں، جواب ہم بعد میں دیں گے. بھائی ایک بندہ جو مانتا ہی نہیں کسی چیز کو، اس نے صرف طوطوں کی طرح ایک چیز رٹی ہوئی ہے، دیکھو جی وہ تو قرآن حدیث سے بات کر، بس اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں. وہ کہتا ہے تم لوگ جھوٹے ہو اور مرزا جونیئر جیلمی سچا ہے. اور جب اس سے ہم مرزا جونیئر کی کوئی ویڈیو پر بات کریں وہ بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں. بتائیے اس کا حل ادریس، ساجد ادریس بھائی کڈو نا، کوئی حل کڈو یار. جی ساجد بھائی. جی جی. پیچھے سے لگے ہوئے ہیں شاہ صاحب، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان کا بغیرتوں کا کوئی حل کرتے ہیں. اس لیے ہم سب بھائیوں کو، میں نے اس دن اسد بھائی کو بھی بتایا تھا چیز کے بارے میں، پوری ویڈیو چلائی تھی ہم نے، اور بیٹھے تھے اپنا چاچا بوٹا بھی، کہ سب کچھ ان کے سامنے رکھا تھا. پوری ویڈیو میں نے چلوائی تھی، میں دیکھو ادھر کہ یہ کیا کیا کر رہا ہے. نئی ویڈیو کے اندر ہے، ایک کوئی 4-5 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے، تو ری پوسٹ اس نے کی ہے دوبارہ نا، تو یہ میرے سامنے آ گئی، ابھی میرے سامنے پڑی ویڈیو. اور بھائی جانا ساجد ادریس بھائی، میری جان، میرے جگر دے ٹوٹے، گل یہ ہے کہ آپ 4-5 مہینے پہلے کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں،
اور یار اس کی بھائی ہر آنے والی ویڈیو کے اندر اگر 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے تو کوئی 500 کے قریب سوالات اس میں بنتے ہیں ہر جی ویڈیو. جی تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ویڈیو کے اوپر جو سوالات قائم ہوتے ہیں ان کے جوابات کہاں سے ملیں گے؟ سوال یہ ہے، اس کا حل بتائیے کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو. یہ تو جواب دیتے ہی نہیں ہے کسی کو بھی. یہی وہ تو وہی مسئلہ ہے نا جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ 2 صفحے پیچھے 2 آگے، ایسا ہی ان لوگوں نے رٹا لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کوئی جی بھائی کوئی مرزئی سن رہا ہے، مرزا جونیئر جیلمی کا فالوور، اسٹوڈنٹ، امتی، صحابی، شاگرد، کوئی ساتھی، کوئی جو بھی ہے، جو بھی تم ہو، آؤ یار سامنے تو آؤ. تھوڑی دیر کے لیے میں آیا تھا بہرحال، تو پھر بھی دیکھو اتنی لمبی چوڑی گفتگو ہو گئی ہے. میں تو صرف ایک چھوٹا سا سوال لے کے آیا تھا. میں بیٹھا تھا ویڈیو کے اوپر کام کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ اس کے اندر کسی مرزئی کا کمنٹ بھی بیچ میں شامل کیا جائے. تو ریکارڈنگ ابھی ہو رہی ہے ویڈیو کی، تو چلو تمہارا بھی ذکر خیر ہو جائے گا ویڈیو کے اندر. آ جاؤ بھائی کوئی کال ڈالو یار مرزئیو، اتنے بندے اب بیٹھے ہیں. آ جاؤ کوئی مرزئیو، آؤ یار. کوئی تبلیغ شبلیغ ہی کر لو یا کوئی گال شال کر لو یار. آ جاؤ، جیڑا تہاڈا کام ہے وہ گال ہی کڈیا کرو، آ کے کچھ تے کرو یار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہاں دیاں متاں وج گئیاں، انہاں دے متاں وج گئیاں خدا دی قسم. پینڈو آ یار، ذرا پینڈو کو بلائیں یار، کال ڈالیں. علی جی شاہ جی کسے پینڈو؟ پینڈو کو. اچھا شاہ جی وہ جی. پینڈو یار نا پیمپر نہیں لا کے آیا، نہیں آنا انہیں اتنے. شاہ جی اس کے پرائیویٹ کیا ہوا ہے، یہ شو نہیں ہو رہا نیچے انویٹیشن میں. اچھا محمود بھائی، شکریہ بھائی. شاہ جی یہ ماشاءاللہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، تو شاید آپ کو پتا ہو اس کے بعد یہ راگ جائیں گے زیارتوں پہ انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا سلام عرض کریو بھائی. تے میں تے اس ٹائم پاکستان ہاں، تے حضور نو عرضی پیش کریا جے سرکار جی بڑے یاد ہوندے ہو، بس ہے عرضی ایک پیش کر دینا. جدوں رات پیندی ہے تے عرض کرنا کہ سرکار جی یاد ہوندا ہے، تواڈے در تے جڑیاں راتاں گزاریاں نے وہ یاد ہوندیاں. کیا محمود بھائی ہمارا بھی سلام کہیے گا جی. بہت شکریہ جی. اچھا شاہ جی میں نے پرسنلی نہیں اس کو اتنا سنا نا، یہ محمد علی مرزا جو ابھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی مطلب بلا ہے مارکیٹ میں. میں اس کو پہلے سنا کرتا تھا، یقین جانے آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کی شاید بات ہے. تو پھر میں نے بیچ میں اس کو چھوڑنے ہی بند کر دیا کہ اس کی جو ویڈیو بھی سنتا تھا ہوئے 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 سوالات پہ سوالات قائم ہو جاتے تھے، اتنے سوالات. اب مصیبت یہ تھی کہ ان سوالات کے جوابات ہم کس سے لیں؟ جب کسی مرزئی سے ہم سوال کرتے ہیں وہ آگے سے دندیاں نکال دیتا ہے یا گالیاں نکالتا ہے. 2 کام ہوتے ہیں مرزئی کے پاس، یا دندیاں نکالے گا یا گالیاں نکالے گا. اب مطلب جواب کس سے لے؟
मैं जवाब लेने के लिए मिर्जे को कॉल की, उसने कॉल काट दी, मैंने उसकी ब्राड पर छापा मारा, वो मुझे देखते ही भाग गया, मैं उसके घर पहुंच गया जेलम के अंदर, उसने अपनी जनानी को निकाल दिया। बताएं हम किससे जवाब किससे लें, की करिए? साजिद अदरीस भाई कोई साडा भी ते हल कड्डो ना जी, कोई सानू भी ते दसो, कोई मशवरा दिओ, सियाने बयाने हो तुसी। अच्छा जी, अब तो ये नौबत आ गई है कि जो मिर्जा इंजीनियर के छोकरे हैं ना, उन्होंने मिर्जइयों के साथ हाथ मिला लिया बाकायदा तौर पे। खत्म नबूवत के जो मुजाहिदीन है ना, आप हो गए, ज़िया भाई हो गए, साहिल कालू भाई हो गए, इमरान नज़ीर भाई हो गए, उनके खिलाफ अब ये जाके वहां पे दुखड़े रो रहे हैं सलीम माइंड रोस्टर की ब्राड के ऊपर जाके। अब ये नौबत आ गई है। तो ये यार देखे, मैं तो ये सुनता नहीं ना, ही तो कादियानियों की ब्राडों के ऊपर मैं जाता हूँ, मैंने बाइकाट किया हुआ है। तो आप लोग जो जाते हैं रिकॉर्डिंग किया करें ना यार, ये सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग किया करें। शाह जी रिकॉर्डिंग की हुई है मैंने। हाँ करें करें करें, रिकॉर्डिंग कर करके कौम को दिखाएं, सोशल मीडिया पे वायरल करें, ये शाह अपलोडिंग जी मैं करें। अगर इजाजत देते हैं तो मैं ये एक सुनवा देता हूँ। ये जो बाबा कुकी है ना, ये जो इसका राइट हैंड है इसका काजमी का, हम्म। उसकी जो है ना, ये जो उसने सलीम माइंड रोस्टर की नहीं ब्राड अब के ये ऊपर देखें जाके ना, ये आप जो चीजें साबित ऐसे होंगी कि पहले आप वो वीडियो पेश करेंगे कि देखें जी ये इसका राइट हैंड है। अब राइट हैंड होने का सबूत आप देंगे, समझ आई कि नहीं? ये है ना, ये रिकॉर्डिंग से शाह मुराद जी ये है कि मैं हर चीज का सबूत। कथा कलामी की माफी चाहूंगा, ये मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि ये ऊपर उसको बताया हुआ है इन्होंने अपने साथ इसरा रूम में, और नीचे वो नाउज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह हज़रत के ऊपर जुमले करता है ना। मुझे भी भाई इनवाइट वो किया, तो मैं गुजरा जी जी, मैंने मैसेज किया, मैं क्या ऐसे बंदे को आप बैठाओगे तो मैं ऊपर नहीं आता। भाई बात यह, वो तो आप जानते हैं या मैं जानता हूँ, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो जानते हैं, कौम तो नहीं जानती। भाई जिनको पता ही नहीं है, जिनको इन ब्राडों का नहीं पता, जिनको इनकी आईडीज का नहीं पता, वो तो नहीं जानते। वो पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे ये जी झूठ बोलदा मौलवी, झूठ बोलदा मौलवी, इल्जाम लगा रहा है, वो तो ये कहेंगे। अब ऐसी कौम को भाई, ये लकीर की फकीर कौम है, पूरी पूरी एक एक चीज बतानी पड़ती है कि ये देखो इस चीज का ये सबूत, हमारा ये दावा तो इसका ये सबूत, हमारा ये दावा तो इसका ये सबूत, ये तरीका है। हाँ ऐसे नहीं, पूरा पूरा जनाब आपको रहनुमाई इस कौम की करनी पड़ेगी, फिर जाके मानेंगे तो फिर भी नहीं, ये मुझे पता है। लाख सबूत दे ले, जिसने नहीं मानना उसका कव्वा चिट्टा है तो चिट्टा ही रहना है, उसने नहीं मानने नहीं, क्योंकि उसने तो कसम खाई है। समझ आई कि नहीं? तो ये असल में होता ये है कि इसको ना मंतिक की जुबान के अंदर ना कजाया कहते हैं, कजाया, कजाया कजिया की जमा होती है। समझ आई कि नहीं? तो इसके अंदर होता कुछ यूं है कि एक एक कजिया जो होता है पहले होता है, फिर एक कजिया बाद में होता है। उन दो कजाया को मिला करके एक तीसरी चीज होती है जिसको कहते हैं नतीजा, वो फिर नतीजा अखज किया जाता है। समझ आई कि नहीं? तो कजाया की बड़ी बड़ी जो किस्में बनती हैं, एक कजिया हमलिया होता है, एक कजिया शर्तिया होता है। समझ आई कि नहीं? तो कजिया शर्तिया के अंदर भी ये होता है कि एक उसमें मुकद्दम होता है, एक ताली होता है, एक रबत होता है या राबता होता है। तो ये सारे कजाया आपस में मिला करके कुछ एक नताइज अखज किए जाते हैं। तो ये है कि ये जो वीडियोज होती हैं, ये कजाया असल में होती हैं।
جو کہ محمول اور موضوع کا فائدہ دیتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں، اس کے بعد نتائج اخذ کرتے ہیں. تو آپ قضیہ اول بھی پیش کر دیں، قضیہ ثانیہ بھی پیش کر دیں، نتائج بعد میں اخذ ہوں گے. اب ان لوگوں کی جاہلوں کی جانے بلا، یہ میں کون سی گفتگو کر رہا ہوں؟ اب یہ منطق کی میں گفتگو کر رہا ہوں. اب منطق کے انہوں نے کبھی، ان کے پیو نے بھی خواب کے اندر نہیں دیکھی ہوگی منطق کیا ہوتی ہے. صرف یہ مرزا سینئر غلام قادیانی کا جو کوئی فرزند ہے یا مرزا جونیئر جیلمی کا کوئی فرزند مجھے صرف قضیہ کی تعریف کر دے آ کے ادھر، تو اس کو مان جاؤں میں. نتیجہ تو تبھی اخذ ہوگا نا جب دو قضایا ہمارے سامنے موجود ہوں کہ جن سے لے کر کے تم نتیجہ اخذ کر رہے ہو. باجی چندہ آئی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. ہاں جی. جی باجی بات کریں آپ. مجھے بس یہی کہنا ہے کہ میں زیادہ سنتی نہیں ہوں، ادھر ہی کوئی کلپ مجھے سننے کو مل جائے تو سن لیتی ہوں، لیکن جو لوگ سنتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ وہ آ کے مطلب اتنی جلدی کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اور کتنا زیادہ ڈیپینڈ ہونے کے کہ بدتمیزیوں اور گستاخیوں پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی چاہت ان سے جڑ گئی ہے تو آپ تھوڑا سا کنٹرول کرنا بھی سیکھیں. یہ میں چیز بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ اس آدمی کے لیے بہت زیادہ مرنے مرانے سے پیار ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ اصل میں ان کے پیشوا جان ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے نا. قادیانیوں کے اندر مرزا سینئر غلام قادیانی کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے، اور مرزائیوں کے اندر مرزا جونیئر جیلمی کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے. کبھی آپ لوگوں نے ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہوتی دیکھی ہو؟ کبھی کوئی گالی نکالی ہو؟ کبھی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں. ہم نے اپنا ایک زندگی کا معیار بنایا ہوا ہے، گالی نہیں بھائی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں. میرے منہ سے کبھی کسی نے کوئی گالی سنی ہو کسی کے بھی خلاف؟ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ جب ہم مرزا قادیانی کی عبارتیں نقل کر رہے ہوں تو اس کی عبارتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سچا خدا پرست جو ہوتا ہے وہ کتی کا بچہ ہوتا ہے. جو لکھا ذریات البغایا یعنی رنڈیوں کی اولاد، ذریات البغایا رنڈیوں کی اولاد، رقاصہ کی اولاد، اور ان کی مائیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. ہاں، یہ ہم ناقل ہیں بھائی، نقل کر رہے ہیں، یہ گالی نہیں ہے. یہ اگر یہ گالی ہے تو یہ تو ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں تمہاری کتابوں کے اندر سے. تم کہتے ہو جی یہ بد کلامی کرتا ہے، یہ گالیاں نکالتا ہے، یہ وہ بھائی میں نے تو نہیں کبھی گالی نکالی، سوائے اس کے کہ میں تمہارے بابوں کی بات بیان کرتا ہوں. مرزا جونیئر جیلمی کا بھی یہی ہے. وہ جب خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی مرزائیوں کی ماؤں کے 4 شوہر ہوں گے، میں تو ناقل ہوں بھائی. گلا پکڑنا ہے، گرے بان پکڑنا ہے تو مرزا جونیئر کا جا کے پکڑو، میں تو نہیں کچھ کہتا. تم مجھے کیسے الزام دے سکتے ہو بھائی کہ تو بد کلامی کر رہے؟ بھائی میں تو ویڈیو چلا کے دکھا رہا ہوں یار. جی باجی. ہاں جی بالکل. ویسے بھی میں سوچتی ہوں کہ اگر مطلب کس طرح پتہ نہیں کس مدرسے سے یہ لوگ تعلیم لیتے ہیں کہ
अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में कि शाह जी आवाज डबल अदब हो रही तो है, है आप म्यूट करें प्लीज। क्या हुआ है साजिद भाई? आवाज डबल हो रही है, थोड़ा सा म्यूट करें, आपकी तरफ से आ रही है डबल आवाज। जी मैं माइक म्यूट कर लेता हूं। अब ठीक आ रही है आवाज। अदब जो है ना बहुत बड़ी चीज है। अगर आलम ही इस तरह से बेअदबी की तरफ ले जाएंगे बच्चों को या न्यू जनरेशन को, तो ये बड़े दुख की बात है। क्योंकि कोई भी बात है उसको थोड़ा सा नरमी के साथ और अदब के साथ पेश किया जाए। और एक आलम जो होता है वो बहुत बड़ा रुतबा रखता है, बहुत ज्यादा। मुझे तो सुनने का ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ज़हन इस काबिल नहीं है कि मैं इन चीजों में पढूं। लेकिन मिर्जा कादियानी का जो तहरीरों में मसला है वो सबसे बड़ा मसला अगर कोई गौर करे तो वो भी तकब्बुर है। यानी कि हर एक को डिग्रेड समझना, हर एक को। और जो मती इंसान होता है ना, जो मानने वाला होता है, जो मतहत होता है, उसके लहजे में, उसकी कलम में, उसकी बातों में वो नजर आता है। जैसे पीर मेर अली शाह साहब हैं, उनके जो मैंने वो सेफिर चिश्तियाई है वो पढ़ी है, उन्होंने कहीं भी मिर्जा कादियानी को गाली गलोच नहीं लिखा। यानी कि जहां पे भी जिक्र आया है उन्होंने अपनी तहरीर में लिखा है, मैं दिखा भी सकती हूँ कि मिर्जा कादियानी साहब ने ये ऐसे इस मौके पे ये फरमाया, उनकी बात का ये मतलब रद्द है, ये है। तो ये बात मुझे इतनी कि मतलब उनकी प्यारी लगी पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की कि मेरे दिल में और ज्यादा खुद पढ़ के इज्जत बन गई। और दूसरी तरफ मिर्जा कादियानी ने कहा है कि ए गोलड़े की जमीन तू मतलब क़यामत तक हो गई, मलून हो गई इस मेर अली शाह की वजह से, लईन की वजह से। और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को ए सनाउल्लाह तू औरतों की आर है, यानी कि इतनी इतनी गंदी गालियां उर्दू में लिख के। तो वो चीजें अगर कादियानी भी किसी और के साथ चलें, तजाद ही करने के तौर पे पढ़ लें, क्योंकि ये पीर मेर अली शाह के बहुत ज्यादा बाय बर्थ नफरत डालते हैं अपने बच्चों में। तो ये चीज बहुत ज्यादा अहमियत रखती है कि मिर्जा कादियानी की किताबों में कितना ज्यादा गंद लिखा हुआ है। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि उनकी बात मैं पढ़ता हूँ तो लगता है लोगों को कि मैं गाली दे रहा हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है। इस बात की मैं 100% तायीद करती हूँ, क्योंकि जब मैं लिटरेचर पढ़ती थी तो घर में बात करती थी तो मेरे वालिद आग बगोला हो जाते थे कि ये कोई मौलवी तुम्हें सिखाता है, कौन मिलता है तुम्हें, कोई लड़की ऐसी मिली है, तुम्हारा स्कूल जाना ही बंद। यानी कि मिर्जा कादियानी का लिटरेचर बयान करना भी एक गाली ही लगता था अपने फैमिली के अंदर बैठ के। हाँ जी मुफ्ती साहब आप बात करें। जी जजाकल्ला। एक तो ये जट भाई बहुत शुक्रिया भाई प्यार मोहब्बतों का। बात यही है कि देखिए कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हम लड़ाइयाँ करने के लिए तो नहीं बैठे यहाँ पर, हम तो तुम्हें समझाने के लिए बैठे हैं। भाई दो ही तरीके हैं ना, या तुम हमसे समझ लो या कोई चीज तुम हमें समझा दो। भाई ठीक है कि हम गलत है, हम झूठे हैं, हम जो भी हैं, तुम्हारी बला से जो कुछ भी है कह लो, ठीक है मान लेते हैं। वो दूसरा तरीका ये कि अब तुम हमें समझाओगे कि नहीं। भाई हम गलती पर हैं, तुम आके समझा दो। रोका तुम्हें किसने है? हम तो तुम्हें जनाब दावत दे रहे हैं, हम तुम्हें दावत मुकालमा दे रहे हैं, दावत इफहामो तफहीम दे रहे हैं, आ जाओ। तो कादियानी हो या मरजई हो, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी वाले हो या मिर्जा जूनियर जेलमी वाले, वो बिल्कुल मुत्तफिक है। यानी एक चीज दबा के रखी है, एक चीज के अंदर ये दोनों कॉमन है। लो जी तुम झूठ बोल रहे हो, लो जी तुम फिरका वारियत फैला रहे हो, लो जी तुम गालियां निकालते हो, लो जी तुम गलत बातें करते हो, लो जी तुम ये करते हो, वो करते हो। भाई ठीक है हम गलत हो गए ना, मान लेते हैं भाई, मान लिया हम गलत हैं, हम झूठे हैं, हम कोई मुशरिक, हम कोई काफर है, हम कोई मुर्ताद है, हम कोई मुसलमान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है मान लेते हैं।
अब सिर्फ तुमने आके फतवा लगाना था कि ये खबर देनी थी, आके ये न्यूज देनी थी तुमने कि भाई तुम काफर हो गए हो, क्या आगे हमें समझाना नहीं है? कोई इस्लाम की दावत नहीं दोगे क्या? वो किसने देनी है? कि आके हमें भी तो कोई इस्लाम की दावत दो ना, कोई आके समझाओ, कोई हमें कोई अपनी टीम के अंदर, अपने फिरके के अंदर, अपने कल्ट के अंदर, अपने मजहब के अंदर लेके जाने की कोशिश करो ना। जब जब हम बराडें करते हैं एक बहुत बड़ी तादाद होती है माशाल्लाह। अभी मैंने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तानी टाइम रात 7 बजे से लेके 11 बजे तक की बराड, आज तीसरा दिन होगा इंशाल्लाह। यकीन जानिए 550-600 तक की तादाद जाती है। एक बहुत बड़ी, ये सिर्फ टिकटॉक की बता रहा हूं, ये हमारी 4 प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ब्राड नशर हो रही है। यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। लेकिन दावत देने के लिए कितने लोग आए हैं? आइंदा देख लेते हैं कितने आएंगे। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज का इजाफा करता हूं कि देखिए, वो कहते हैं अल इल्मु नूरुम मिन नूरिल्लाह, इल्म अल्लाह के नूरों में से एक नूर है। ये जो इल्म होता है ये सीनों को मुतजल्ला कर देता है, मुनव्वर कर देता है, और जहालत के अंधेरे छट जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो दरस निज़ामी के आलूम होते हैं, जो फनून होते हैं, उनके अंदर एक फन है जिसका नाम है इल्म मंतिक। अब ये इल्म मंतिक मुकालमात की जड़ है। ये वो इल्म मंतिक है जिसकी बदौलत हम मुकालमात करते हैं। ये वो इल्म मंतिक है जिसकी वजह से हम मुनाजरे करते हैं। अब इसके अंदर होता यह है कि एक सुगरा होता है, एक कुबरा होता है, फिर बाद में नतीजा होता है। अगर तो तहरीर के अंदर हो तो ये कुलिया तहरीर के अंदर लगेगा, अगर तकरीर होगी तो यही कुलिया तकरीर के अंदर भी लगेगा। दोनों के अंदर ये कुलिया बराबर है। अब सुगरा जो होता है ये कज़िया अव्वल होता है, कुबरा जो होता है कज़िया सानिया होता है, बाद में नतीजा निकलता है। अगर सुगरा जो है वो मूजबा कुलिया हो और कुबरा मूजबा कुलिया हो तो नतीजा जो होगा मूजबा कुलिया निकलेगा। जैसे सुगरा है कुल्लू अलिफ बा, तो कुबरा होगा कुल्लू बा जीम, और नतीजा निकलेगा कुल्लू अलिफ जीम। अगर सुगरा मूजबा कुलिया होगा तो कुबरा जो होगा वो सालबा कुलिया होगा, तो नतीजा जो निकलेगा वो सालबा कुलिया का निकलेगा। जैसे सुगरा कुल्लू अलिफ बा हो और कुबरा ला शैया मिन बा जीम हो, तो यकीनी सी बात है नतीजा इसका निकलेगा ला शैया मिन अलिफ जीम। अगर सुगरा जो है वो मूजबा जुजिया हो और कुबरा मूजबा कुलिया हो, तो यकीनी सी बात है नतीजा जो निकलेगा वो मूजबा जुजिया का निकलेगा। जैसे मूजबा जुजिया की मिसाल है कि बाजू अलिफ बा, और मूजबा कुलिया की जो मिसाल है वो है कुल्लू बा जीम, तो नतीजा ऑटोमेटिकली निकलेगा कि बाजू अलिफ जीम। अगर बिलफर्ज सुगरा मूजबा जुजिया हो और कुबरा सालबा कुलिया हो तो नतीजा निकलेगा सालबा जुजिया। इसकी मिसाल सुन लें। मूजबा जुजिया की मिसाल है बाजू अलिफ बा, और सालबा कुलिया की मिसाल है ला शैया मिन बाजीम, तो नतीजा भाई मेरे ऑटोमेटिकली निकलेगा बाजू अलिफ लैसा जीम। अब ये कायदे कुलिये वो हैं कि जो हमारे तमाम मुकालमात के ऊपर मुहित होती हैं। इनको हमारे नजदीक अशकाले अरबा कहते हैं इल्म मंतिक की जुबान के अंदर, और ये मैंने शक्ल अव्वल आपके सामने और पेश की है। समझ आई कि नहीं?
اب ان کی جاننے بلا مکالمات کیا ہوتے ہیں، مناظرات کیا ہوتے ہیں، علم منطق کیا ہے، علم فلسفہ کیا ہے، علم کلام کیا ہے، علم بدیع کیا ہے، علم بیان کیا ہے، علم فصاحت کیا ہے، علم بلاغت کیا ہے، علم صرف کیا ہے، علم نحو کیا ہے، علم ادب کیا ہے، علم اصول کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، اصول تفسیر کیا ہے، انہاں دی جانے بلا اے کیڑے باغ دی گاجر مولی ہے؟ یعنی جہالت کی انتہا کا نام قادیانیت اور مرزیت ہے، جہاں پہ جہالت کی بھی جا کے انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے بنیادیں شروع ہوتی ہیں مرزا قادیانی کی اکیڈمی کی اور مرزا جونیئر جیلمی کی اکیڈمی کی۔ بھائی ایک بندہ ایک صفحے پر کہتا ہے کہ نبوت جاری ہے، اگلے صفحے پہ کہتا ہے نہیں سوری پہلے صفحے پہ کہتا ہے نبوت بند ہے، اگلے صفحے پہ کہتا ہے نبوت جاری ہے۔ اب انہی اشکال اربع کی روشنی کے اندر نتیجہ ماخذ کریں گے۔ ایک بندہ جناب اپنی تقریر کے اندر کہتا ہے کہ دیکھو جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگلا اس کا قضیہ یہ ہوتا ہے، سغرا کے اندر تو اس نے یہ کہا، کبرا کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کہتا ہے مجھے 60 سال کی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا، کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا۔ اب ان دو قضایا کو لے کر کے ہم ایک نتیجہ اخذ کریں گے، وہی نتیجہ حکم ہے۔ تو بات کرو، ہم سے بات کرو، ہم تو ٹھہرے بھائی جاہل بقول تمہارے، ہم ٹھہرے کافر بقول تمہارے، ہم ٹھہرے بھائی بالکل کچھ بھی نہیں، من لینے یار، من لیا سی، من لیا بھائی جی، من لیا، کنج منوانا جے دسو کہ صرف ٹپ ٹپ کرنی ہے یا گالیاں نکالنی ہیں؟ یہ تم نے اچھا طریقہ اختیار کیا ہے، ٹپ 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 تمہاری بند نہیں ہوتی، اور جناب گالیاں وہ گالیاں وہ گالیاں، اور آگے سے تم نے یہ طریقہ کر دیا ہے اپنی براڈے کھول کے بہ گئے، اور جناب جب کوئی بندہ ہمارے جیسا کوئی جاہل اور کافر اور مشرک چلا جائے، او چلو لا دیو تھلے، لا دیو تھلے، لاؤ سوئے، او میوٹ کرو، بلاک کرو، نہیں وہ نہ گل نہیں کرنی بھائی۔ یعنی تم نے ہمارا منہ بھی بند کر دیا، ہمارے ہاتھ بھی باندھ دیے، نہ ہاتھ پاؤں چلانے کی ضرورت ہے، نہ منہ چلانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں بھائی۔ یہ طریقہ ہے تم لوگوں کا، قادیانی بھی یہ کر رہے، مرزئی بھی یہ کر رہے۔ عجیب سی مخلوق سے پالا پڑ گیا ہے، اللہ کی قسم، عجیب مخلوق سے۔ نبی عالم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بارے میں ہمیں پہلے خبردار کر دیا تھا ایسے ہونا ہے۔ نبی نبوت نبی غیب ہے، حضور تو عالم الغیب ہیں، وہ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ نبی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں جاننے والا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے پہلے ہی خبردار ہمیں کر دیا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا، قرب قیامت میں کیا کیا ہوگا، وہ سب بتا دیا تھا ہمیں۔ میں 2-3 حدیثیں یہاں پہ پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کے مقدمے کے اندر امام مسلم حدیث لے کے آئے ہیں، یہ حدیث نمبر 2 ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بولو، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 3 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ لے، ہمارے صحابہ تو حدیثیں بیان کرنے سے ڈرتے تھے،
आज जहालत का वो दौर आ गया है। कड्डो जी हदीस, जी ले आओ जी हदीस, किधर है जी हदीस, लेके आओ जी हदीस, लाओ जी हदीस, कड्डो जी हदीस, हदीस से बात होगी जी, हदीस से बात होगी जी। अबे उल्लू के पट्टे, ये जो दीन है ये हदीस का नाम नहीं है, ना ही फकत कुरान का नाम है। लल्लू लंगूर, अगर ये बात है ना तो चल फिर आओ, तुम्हें मैं हदीस सुनाता हूं, इस पर अमल करके दिखाओ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 652 है। शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद की मुखालफत करो, क्योंकि ना वो अपने जूतों में नमाज पढ़ते हैं और ना अपने मोज़ों में। अब करो मुखालफत और जूते पहन के नमाज पढ़ा करो। ये हदीस मैंने सुनाई है। करो यहूद की मुखालफत और जूते पहन के आइंदा से नमाजें पढ़ो, और तुम्हें लोग लित्तर ना लगाएंगे तो मुझे पकड़ लेना। आज अपनी मस्जिद में जाना और जूते पहन के अंदर जाना और नमाज पढ़ना और उसकी वीडियो बना के पेश करना। कर यहूद की मुखालफत, यह हदीस मैंने तुम्हें सुनाई है। चल एक और हदीस सुना देता हूं, यह भी अबू दाऊद की हदीस है 3844। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो उसे बर्तन में डबो दो, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी होती है और दूसरे में शिफा, और वो अपने इस बाजू को बर्तन की तरफ आगे बढ़ा कर अपना बचाव करती है जिसमें बीमारी होती है। इसकी पूरी मक्खी को डबो देना चाहिए। चल आज ऐसा कर, एक वीडियो बना और चाय का कप सामने रखना और उसके अंदर मक्खियां पकड़ पकड़ के ना डालो, क्योंकि शिफा होती है ना उसके एक पर के अंदर। हजूर ने फरमाया भाई हदीस के अंदर है, तुम इनकार तो नहीं कर सकते। तो शिफा तुम हासिल करो। दवाइयां आइंदा से ना वो पेनाडोल की गोलियां खानी छोड़ दो और मक्खियां बस पकड़ पकड़ के ना शिफा हासिल करने के लिए, क्योंकि हदीस है भाई, इस पे अमल तो कराना है ना, फिर हदीस को मानना है। चल कर अमल करके दिखा और वीडियो बना के पेश करना, डबो डबो के निकाल देना। मक्खी को खा जाओ तो वो एक अलग तुम्हारा अपनी एक बात है, क्योंकि उसके शिफा वाले पर को खाना है ना तुमने, वो तुम्हारी अपनी खुशी है। हमें तो सिर्फ हदीस पे अमल करके दिखा दो, मक्खी को फेंको अपनी चाय के अंदर शिफा हासिल करने के लिए और उसको फिर पी जाओ। और फिर ऊपर से ये हदीस दिखाना अबू दाऊद की 3844 और लोगों को बताना कि मैंने हदीस के ऊपर अमल की है। हदीस 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 हदीस, क्या जहालत आ गई है यार। ना ये याद रखिए, ना ही तो डायरेक्ट कुरान से मसाइल अखज होते हैं, ना ही डायरेक्ट हदीस से मसाइल अखज होते हैं, बल्कि शरीयत 4 चीजों का नाम है, कुरान, हदीस, इजमा और कियास। इन 4 के अंदर भी कोई बंदा मसाइल अखज नहीं कर सकता, हराम है। ये मसाइल अखज करेगा मुजतहिद इमाम, समझ आई कि नहीं। और इमाम क्या होता है, इमाम के बारे में पहले सुनने। ये जो अभी मैंने 5-7 अलूम बताए थे ना, वो 5-7 अलूम नहीं, तकरीबन 250 अलूम के ऊपर वो महारत रखता है। हाँ 250, ये तो सिर्फ मैंने 5-6 अलूम बताए हैं। वो महारत तामा रखता है। उसके बाद उसका हाफिजा इतना कवि होता है कि 15-15 लाख उसको हदीसें याद होती हैं। समझ आई कि नहीं। वो हमारे मुजतहिद बैठे होते हैं एक जगह, इल्म की मजलिस लगी होती है, इमाम आजम अबू हनीफा, वो सारे बड़े बड़े उलमा आके सवालात पूछ रहे होते हैं।
पहला बंदा बताता है कि मेरा सवाल ये है, इमाम साहब फरमाते हैं चल भाई अगला बताए अपना सवाल, उससे अगला तकरीबन 80 के करीब उलमा के सब के सवालात सुनने के बाद इमाम आजम अबू हनीफा पहले की तरफ आते हैं। तूने ये सवाल किया था, इसका जवाब ये है, तूने ये सवाल किया था, दूसरे को कहते तूने ये सवाल किया था, इसका जवाब ये है, तीसरे को कहते तूने ये सवाल किया था, इसका जवाब ये है। तो कवि उसका हाफिजा होता है। अगली चीज, इबादत और रियाजत के अंदर बाकमाल होता है। समझ आई कि नहीं? इमाम आजम अबू हनीफा वो कि जिन्होंने जो कभी भी बेवुजू नहीं रहे, वो वुजू टूटता था तो फौरी तौर पे वुजू कर लेते थे। इमाम आजम अबू हनीफा वो कि जिनकी एक नमाज क्या एक रकत भी कभी कज़ा नहीं हुई। वो यार वो लफ्ज मुझे भूल गया असफ, जिस बंदे की कोई नमाज कज़ा ना होए कभी भी, यानी उसको क्या कहते हैं, एकदम भूल गया है मुझे, फिका की इस्लाह में नहीं उसका मेरे ज़हन में नहीं यार, वो लफ्ज भूल गया है। किसी को याद है तो बताओ यार, जिसकी कभी कोई नमाज कज़ा ना हो उसको क्या एक लफ्ज बोलते हैं, एक भूल गए एकदम ना, अभी ज़हन में था। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा चलो बहरहाल कभी याद आया तो फिर बता दूंगा। तो हमारे इमाम आजम तो वो थे, और तमाम मुजतहिदीन भाई, ये सिर्फ इमाम आजम ही नहीं, हाँ इमाम शाफी, इमाम अंबल, इमाम मालिक, और बड़े बड़े इमाम अबू यूसुफ, इमाम जुफर, बड़े बड़े हमारे आइमा। और आज तो हर बंदा ही मुजतहिद बना है? हर शाह जी कता कलामी की माफी चाहूंगा, ये तबलीग करने आया बंदा। जी जनाब, कौन तबलीग करने हैं? खुशहाल साहब? जुल्करनैन हैदर। नहीं, खुशहाल साहब वाले बोल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, खुशहाल साहब वाले बोल रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी गल है जी, फरमाओ जी। सारे नालों पहले ते मैं भी अपनी जुबान नूं अपने इख्तियार च रखांगा, ते इन्ना अपने बंदियां नूं भी कह दिओ ते अपने आप नूं भी कह दिओ, जे तुसी मैनूं तबलीग करनी है अच्छे सलाम दी और अच्छे अच्छा तो अमल दे नाल, आप वो 151 वाले हैं ना? मैं जेड़ा भी है 15 वाला या 17 वाला, हाँ हाँ वो ही ना, वो बात गल आपकी होंदी है। वो ही है, ठीक है सही है जी, बोलिए। अच्छा आपका नाम असल जुल्करनैन है? जी अच्छा जी, ठीक हो गया, बेहतर हो गया। थोड़ी देर पहले तुसी अच्छा आप ना कैमरा ऑन कर सकते हैं, आज आपकी तस्वीर ही हम देख लें। मेरी तस्वीर तुसी मेरी टिकटॉक का जी देख लिया जी, बड़ियां नहीं नहीं वो ना लाइव एंड करके पाओगे ना, कैमरा सामने रख के, ते चलो है जी में कैमरे नाल मेरा की कर लेना है तुसी, कैमरे को छड्डो तुसी। वो असल में ना ये बंदे को हम तलाश कर रहे हैं, ये देखें मैंने जैसे कैमरा ऑन किया ना, ये देखें। ओ मेरा कैमरा चला के तुसी मेरा की लब लेना विचों, कैमरे नु छड्डो। नहीं आपको तो हम बड़े अरसे का तलाश कर रहे हैं जनाब 151 साहब। तो तुसी जिथे भी मैनू तलाश करदे जे मैं तुहाडे अगे पीछे ही हां, मैनू ना तुसी भुल्लो। वो ठीक है, वो कैमरा ऑन कर लेंगे तो चलो। हुण गल फिरन दा फायदा नहीं, जिथे गल चल नहीं रही असल में आपके बारे में ये है कि आप एथीइस्ट हैं, दैरी हैं, ठीक है। चलो तुसी मैनू दैरिया कह लो या जेड़ा भी कह लो, चलो ठीक मैं हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अपने आप नू मुसलमान कहना। वो सारे ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो सारे ये है कि ही दैर्य को ये हक कैसे है कि वो दीन के ऊपर, हमारे इस्लाम के ऊपर जिरा करे और बातें करे। सही ठीक है, तुसी जो मर्जी कहो। हुण जेडे तुसी अपनी गल कीती नहीं ना, देखिए आप, मैंने अभी देखे मैं कैमरा, हालांकि मैं काम कर रहा था, मैं कैमरा ओपन नहीं करना चाह रहा था, मैंने कैमरा ऑन कर दी, मैं आपके सामने। भाई जो खालिस बंदा होता है उसको कोई पर्दों के अंदर छुपने की जरूरत नहीं पेश आती। अगर आप खालिस है मेरे भाई, सामने आ जाए, पता चल जाए कौन है आप।
ਓਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਡਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਡਈ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ लगती तो मैं उर्दू में बात कर लेता हूँ। भैया आप कैमरा ऑन कर देना ताकि पता चल जाए आप एथीस्ट हैं, आप कादियानी हैं, हिंदू सिख ईसाई हैं, कौन है, यहूदी हैं, पता चल जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। नहीं हमने तो मैं हमें तो नहीं कोई हमने आपको कोई दावत तो नहीं पेश की। मैं सवाल आपसे क्यों ਵਾਲਾ करूं ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਈ, ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੁਣੇ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਜਿੰਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬੰਦਰ ਸੂਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਨੇਕ ਮੂਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ठीक है मुबशर साहब, मुफ्ती मुबशर साहब, मुफ्ती मुबशर शाह साहब माइक म्यूट करेंगे तो फिर ही मैं बोलूंगा। ये गुजारिश ये है, कोई बात नहीं है, ये 151 नहीं है, ये जुकुरनैन नहीं बैठा। कादियानी है जी ये। वो जो भी है वो बंदा एक सामने नहीं आ रहा, मैं कैसे बात करूं बताएं। अब मुझे क्या पता ये बंदा, अब देखे ना एक बंदे ने कहा ये कादियानी है, अभी इनसे पूछ लें इन्होंने इनकार कर देना। क्या आप कादियानी है भाई? हेलो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी मुसलमान हूं, कादियानी नहीं है। अच्छा मैं पाकिस्तानी हूं। अच्छा ठीक है, वो खुद मैं बंद कर दूं, खुला रहने अच्छा दूं। हम माइक बंद कर लें। आप अहमदी हैं, ठीक हो गया, तो आप मिर्जा साहब को क्या समझते हैं? मैं उनको वही समझता हूँ जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना ही उससे रत्ती ऊपर ना ही रत्ती नीचे, हवा बराबर भी ऊपर नीचे नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ नहीं, मिर्जा साहब को आप कहते हैं मैं मानता हूं जो नबी करीम ने फरमाया। नबी करीम ने क्या फरमाया? चलो मैं भी उर्दू में बात करता हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया था कि हदीस मुबारका में है कि जूती पहन कर नमाज पढ़नी चाहिए। आप मेरे सवाल का जवाब सवाल देंगे? का आप मेरे मुझसे सवाल जवाब का ले लें, छोड़ दें, मैं आपको छोड़ दें। इसका जवाब आप देता कह हूं रहे और हैं जवाब आपके अंदर से ही दूंगा। अपने अंदर जसारत तो पैदा करें। मैंने कोई हाथ में कोई क्लैशन कोप तो नहीं पकड़ी आप लोगों की तरह, सिर्फ मेरी एक अल्फाज है उसको आप मानने या रद्द कर देना। अगर मैं बद जुबानी करूं, बद इखलाक करूं तो आपके हाथ में इख्तियार है, आप उसी वक्त मेरे को नीचे निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि हमेशा के लिए मुझे आप अपने महफिल से निकाल सकते हैं, ये आप इख्तियार में। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि अपनी जुबान को अपने इख्तियार में रखना, और इख्तियार भी वो रखना जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो। बस मेरी इतनी दरख्वास्त है और कुछ नहीं है। यार क्या नाम है, एडमिन मौजूद? जी जी शाह जी, जी शाह जी। टाइम वॉच लगा सकते हो? शाह जी मैं कह रहा हूँ किसी मदारिक लगा दें, मुझे नीचे भी मैनेज करना होता है, फिर मसला हो जाएगा मेरे लिए। मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। आप मुझे बोलोगे ना माइक बंद करो तो मैं माइक बंद आप वॉच मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नीचे भी थोड़े कुत्ते आते हैं, उन्हें मैनेज करना होता है। अबू हसन भाई या कोई और? जी मैं अगर शाह साहब कहते हैं तो मैं शो टाइम में 2 बंदे ऐड करके ना शो टाइम करते हैं 1-1 मिनट। नहीं शो टाइम वाला नहीं होगा। नहीं, वैसे जब टाइम पूरा हो जाए तो आप बता दीजिएगा। चलें ठीक है जी चलें। स्टॉप वॉच गूगल में जाके सर्च करें स्टॉप वॉच, मेरे पास भी है, मैं भी चला सकता हूँ, लेकिन मैंने हवाला जात फिर देने होते हैं वो अमूमी, फिर वो स्टॉप वॉच बंद करनी या चलानी। स्टॉप वॉच नहीं मैं स्टॉप वॉच ऑन करके कैमरा ऑन कर। नहीं कैमरा नहीं, बस आपने इतना सिर्फ बीच में कहना है
कि टाइम हो गया, बस इतना कहना है। वो फिर ना दोनों बंदे जुड़ जाएंगे। चलो ये भी सही। शाह जी ये देखिए ना, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ना, पता चल जाएगा। 2 मिनट चलो मैं बात कर लेता हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट कर लेते हैं, कि 1 मिनट कर लिया जाए, 1 मिनट चले ठीक। आप भले एक एक सेकंड करें। अभी दोबारा करें जी। अच्छा, गुजारिश ये है कि अभी आपने कहा जी मैं मिर्जा गुलाम कादियानी को वो मानता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, वो कौन सी हदीस है? यानी आप मिर्जा कादियानी को मानते हैं हदीस की रूह से, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रूह से आप मानते हैं? ठीक है भाई, मान जाते हैं। मिर्जा कादियानी कहता है कि रूहानी खजाइन जिल्द 20 सफ़ा 409 के ऊपर मेरे फिरका के लोग दलाइल और निशानों की रूह से मुखालिफिन का मुंह बंद कर देंगे। मेरा मुंह बंद करना है आपने दलाइल की रोशनी से, ठीक है, और इल्म और मार्फत और सच्चाई के नूर से मेरा मुंह बंद करना है आज आपने। आप कौन सी हदीस है या कौन सा फरमान है जिसकी वजह से आप मिर्जा कादियानी को मानते हैं? वो हदीस मुझे चाहिए। ठीक है जी, मेरा टाइम खत्म होने लगा है, अब आपका टाइम शुरू होगा, तो जल्दी जल्दी वो हदीस बताएं। चले। मैं आपका मुंह नहीं बंद कर सकता। सबसे पहली बात तो ये, आपने जो तकरीर कर रहे थे ना, मैं आपको उसी का जवाब देने के लिए आया। अगर आपने किसी चीज का हवाला लेना है, आप सलीम मीर साहब से ले लें, वहां आप जाते हैं और फौरन भाग जाते हैं। थोड़ी देर अगर वो आपको निकाल देते हैं या वो इधर आते हैं तो वो निकाल देते हैं। सिर्फ बात यही है कि अपने इखलाक में रहकर बात करें, वो भी इखलाक में रहकर बात करेगा। जो भी आप हवाले मांगेंगे, मेरे पास कोई भी हवाला नहीं है किसी किस्म का। रही बात जो आपने बात की है, मैं सिर्फ वही आपको जवाब देने के लिए आया हूं कि आप कहते हैं कि जूती पहनकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, अगर पढ़नी है तो पढ़ के दिखाओ। अफगानिस्तान में लश्कर तैयबा का शायद आपने नाम सुना होगा, वो सरेआम जूतियां पहनकर नमाज पढ़ते थे, और मैं भी उनके साथ उधर गया था, और मैं खुद, मेरा दिल नहीं करता था। वो उधर के आलमे दिन कहते थे कि नहीं नहीं पढ़ो। मैं आपको कहता हूं, वहां जूतियों के साथ अंदर जाते थे। जी जी शाह साहब 1 मिनट हो गया उनका। माइक म्यूट किया हुआ था यार। अच्छा, गुजारिश ये है कि आप लोगों से, ये हमारा तो नज़ा तो नहीं है कि जूतियां पहन के नमाज पढ़नी है कि नहीं। असल तो मिर्जा कादियानी का ज़ात, किरदार और उसके अकायद और नजरियात हमारा मसला है, कि ना कि ये मसला है आपको कोई काफर इस वजह से कहा गया है इस असम्बली के अंदर कि जूतियां पहन के नमाज पढ़ती हैं कि नहीं आप। ओ भाई, इस वजह से कि तुम लोगों के दावाजात बड़े अजीबो गरीब हैं। मिर्जा कादियानी अपने आप को खुदा कहता है, खुदा का बेटा कहता है, खुदा की बीवी कहता है। वो अपने आप को 1,24,000 नबी रसूल कहता है। वो मजून मुरक्कब कह रहा है। वो अपने आप को रूदर गुबाल कह रहा है। वो अपने आप को जय सिंह बहादुर कह रहा है। वो अपने आप को कृष्ण और कन्हैया कह रहा है। वो अपने आप को जनाब कभी किरमे खाकी कहता है, कभी वो कहता है ना आदमजाद हूं, कभी वो बशर की जाय नफरत बन रहा है। ये मसले थे, ना कि 1974 के अंदर ये बात हुई थी कि भाई जूतियां पहन के तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। तुम अभी कह रहे हो कि भाई मैं हदीस के अंदर जो कुछ आया वो मैं मिर्जे को मानता हूं, वो हदीस पेश करो, बात खत्म होती है। चलो। मुफ्ती मुबश्शिर साहब, मेरे पास, मैंने पहले भी अर्ज किया है, आपके ये सवालों का किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं। पहली बात तो ये, ना ही मेरे पास इधर कोई हदीस है, ना ही मैं उनका कोई हवाला दे सकता हूं, ना ही मैं कोई नंबर दे सकता हूं, ना ही कुछ आपका दिल ऐसा मुतमईन कर सकता हूं जिससे आपकी रूह राजी हो जाए। मैं सिर्फ पहले भी आपसे तकरीबन चंद साल पहले या चंद महीने पहले आपके सामने गुजारिश लेके आया था, जहां अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरेआम ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं तो बोलना भी नहीं चाहता। वहां भी मैं उस वक्त भी आपसे दरख्वास्त की थी, अगर वो कोई सवाल उठाते हैं तो आप उनको जवाब दें जो अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात कर रहे हैं। जी जी शाह जी टाइम हो गया। अच्छा, गुजारिश ये, चले आपने हदीसें नहीं सुनानी तो मैं सुना देता हूं जो मिर्जे ने बयान की हैं।
रूहानी ज़ैन जिल्द 22 सफ़ा 209 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी एक हदीस बयान करता है, अहादीस सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मौद 6 हज़ार में पैदा होगा। ये दुनिया की किसी हदीस की किताब से साबित कर दें, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। हदीस नंबर 2, रूहानी ज़ैन जिल्द 21 है, सफ़ा 118 है। मिर्ज़ा कादियानी एक हदीस बयान करता है, बाज़ अहादीस में भी आ चुका है कि आने वाले मसीह की एक ये भी अलामत होगी कि वो ज़ुल्करनैन होगा। ज़ुल्करनैन आपका भी नाम है। तो ये हदीस दुनिया की किसी किताब से पेश कर दें, आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। हदीस नंबर 3, रूहानी ज़ैन जिल्द 12 सफ़ा 75 और आसार नबविया में भी ऐसा ही आया था कि इस महदी मऊद पर कुफर का फतवा लगाया जाएगा। सो वो सब लिखा हुआ पूरा हुआ। हदीस निकाल के दिखा दें दुनिया की किसी एक किताब में, मुंह मांगा इनाम। 3 हदीसें मैंने पेश की हैं और ये मेरी किताब 200 झूठ के अंदर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। चलो जल्दी कर जवाब दे। मुफ्ती मुबशर साहब जल्दी कर जवाब दे। मैंने पहले भी कहा कि आपने तंजिया अल्फाज को अपने इख्तियार में रखना और अपनी जुबान को अपने ही इख्तियार में रखना। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तियार में रखा हुआ है। मैं भी उसी मुल्क का रहने वाला हूं जहां के आप रहने वाले हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी गैरत रखता हूं जितनी आप रखते हो। शायद आप मेरे से ज्यादा रखते हो या मैं आपसे ज्यादा रखता हूं। ये अल्लाह ताला बेहतर और खूब जानने वाला है। अगर आपने कोई भी हवाला लेना है या किसी किस्म की कोई बात करनी है, वो आप सलीम मीर साहब के पास जाएं। वो आपको फौरन, आपको और आपके जो आलमे दीन है उनका फौरन आपको हवाला आपके ही किताबों से निकाल कर देंगे। जी बात करें। अच्छा, गुजारिश ये है कि हदीस नंबर 4 है, रूहानी ज़ैन जिल्द 17 सफ़ा 213 के ऊपर हदीसों में साफ तौर पर यह भी बतलाया गया है कि मसीह मौद की भी तकफीर होगी और उलमाए वक़्त उसको काफिर ठहराएंगे और कहेंगे कि ये कैसा मसीह है कि उसने हमारे दीन की बेहकुनी कर दी। दुनिया की किसी हदीस की किताब से निकाल लो, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बात यहाँ से हमारी शुरू हुई है कि आप कह रहे हैं कि जनाब मैं मिर्ज़ा कादियानी को हदीस की रूह से मानता हूँ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं मिर्ज़े को वो मानता हूँ। ले क्या हदीस कौन सी है? जबकि हम तो तुम्हें बता रहे हैं कि मिर्ज़े ने हदीसें पेश की हैं, या यही हदीसें दिखा दो। हदीस नंबर 5 में पेश कर रहा हूँ, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 3 जिल्द 3 सफ़ा 404 के ऊपर के लेकिन ज़रूर था कि कुरान और हदीस की 2 पेशगोइयाँ पूरी होती हैं और जिनमें लिखा है कि मसीह मौद जब ज़ाहिर होगा कोई इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा। ये हदीस पेश करो, जल्दी करो, 5 हदीसें हो गई हैं। मुफ्ती मुबशर शाह साहब, आप 5 कर लें या 5 के आगे उतने जीरो लगा लें जितने आपके जिस्म के ऊपर बाल हैं या कुल जहां में जितने इंसान हैं उन सब के बाल हैं। मेरी वही बात है, मेरे पास इतना इल्म नहीं है, ना ही है जो मैं आपको सामने कंप्यूटर के ऊपर जैसे आप वो टिप 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 कहते हो ना करके वो सारी सब कुछ निकाल के आपको दिखाऊं। और आपके भी जो आलमे दीन है या जिन्होंने जो कुछ किया हुआ है या जो कुछ उन्होंने कर दिया है वो मैं आपको दिखाऊं एक शीशे की तरह। मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूं, मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं, आपने वो हदीस बयान की थी जूतियों वाली, वो मैं सिर्फ आपके सामने बात रखने के लिए आया, और दूसरी जो रखने के लिए आया था वो मैंने आपको पहले कह दी। जी अब ये है कि फैसला तो हो चुका है सारी दुनिया के सामने। मैं हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाता जाऊंगा। मैं तकरीबन 250 हदीसें मिर्ज़ा कादियानी की बयान करदा पेश कर सकता हूँ। मेरी किताब 200 शोहरा आफाक झूठ के अंदर ये सारी तकरीबन 250 के करीब मिर्ज़े की हदीसें लिखी हुई हैं जो दुनिया की किसी एक किताब में भी मौजूद नहीं है। और मिर्ज़े ने ये गप मारी थी बहुत बड़ी, जैसे अभी ये गप मुरब्बी जी मार रहे थे कि देखो जी मैं हदीसों की रूह से मानता हूँ। ये तो मैं हदीसें पेश करता रहूंगा, इसने आगे से वही वहां इसकी सुई खड़ी रहनी है। अब फैसला सुनने देखने वाले खुद करेंगे। अपने पैनल में मौजूद हम दोस्तों से राय लेंगे कि कौन क्या कहते हैं। शान भाई आप माइक ओपन करें, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल साहब, आप रेफरेंस से बात कर रहे हैं और दलील से गुफ्तगू है तो उसका वजन है।
अब इनको भी जवाब देना चाहिए उसी तरह दलील से, ताकि वजन बने बात का। जी जी बाजी चंदा, आप क्या फरमाती हैं? अली खान, आप क्या फरमाते हैं? शाह जी उन्होंने तो पहले ही हैंड्स अप कर दिए हैं कि जनाब मेरे पास तो हवाला कोई नहीं, लेकिन मैं जो है ना मानता हूँ जो उन्होंने बताया कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मिर्ज़ा साहब को मानता हूँ। तो आपने को 5 हदीसें बता दी हैं और आपका दावा है कि 200 और बता सकते हैं इस बारे में कि जो मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोले हैं हदीस के ऊपर। तो ये तो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, तो मेरे नहीं ख्याल के आगे गुफ्तगू होनी चाहिए। फैसला तो यही है कि भी ये बयान नहीं कर पाए अपने दावे को जो कह रहे हैं ये कि भी मैं मिर्ज़ा साहब को हदीस से मानता हूँ। शुक्रिया जी। जी साजिद अदरीस भाई, आप क्या फरमाते हैं? इस मुकालमे का क्या नतीजा अखज़ किया आप? असल में शाह साहब जो इसने सवाल पूछा है आपने जवाब उसको दिए, आपने रेफरेंस दिए, दलाल दिए अच्छे तरीके से। अगर ये इसके पास कुछ भी दिया तो ये ब्रोड के बेफजूल है बैठ रहा है इसका, क्योंकि जवाब नहीं दे सकता तो फिर इसको क्या यहाँ पे लेना देना है इसका। फिर जाए फिर अपना काम करे। आपने तो बहुत अच्छे तरीके से दलीलें दी हैं इसको। अगर मिर्जे को मानता है तो ये सामने दलाल के साथ पेश करे। आप यहाँ कोई फायदा नहीं है बैठने का। जी आसफ भाई, आप अपनी राय दे सकते हैं। जी शाह जी, ये तो अपने मिर्ज़ा साहब को ही झूठा करने के लिए हर ब्राड के ऊपर तशरीफ़ ले जाते हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मेरे फ़िरके के लोग इल्म और मार्फत के इस कदर कमालात हासिल करेंगे कि वो मुखालफिन के मुंह बंद कर देंगे। अगर नहीं आएंगे गप्पे मार के तो ये चले जाते हैं। जी अब वो नीचे मिर्जा जूनियर जेलमी साहब वाले भी मरदई आ गए हैं। बाबा कोकी साहब तशरीफ ले आए हैं, वो भी आ जाए भाई। थोड़ी कमी रह गई सी अजे तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक मिनट जी, वालेकुम सलाम। माइक म्यूट रखें अभी। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि आपने देख लिया कि मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरे फिरके के लोग इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे और दलाइल की रोशनी से मुखालिफिन का मुंह बंद करेंगे। और मुरब्बी जी कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास तो इल्म ही नहीं है, मैं जाहिल आदमी, मेरे पास इल्म ही नहीं है। ये है मिर्जा कादियानी। अब या तो मिर्जा कादियानी कज़ाब है या ये मुरब्बी कज़ाब है। मैं तेनों अगे भी आख्या कि अपनी ज़बान को अपने यार देखो, मैं तो साबित कर रहा हूँ मिर्जा कज़ाब है। मैंने तो 200 उसकी बयान किए हैं कि अपनी ज़बान को अपने इख्तियार से रख के भाई। मिर्जा कज़ाब है कि नहीं बता दो, तुम बता दो। तुमने किसी एक चीज का जवाब दिया हो, गल ना कर मैं किसी एक चीज का जवाब दिया हो। मैं तो उसको कज़ाब साबित कर रहा हूँ दलाइल से। या तो उसको तुमने सच्चा करना है तो सच्चाई उसकी बयान करो, ले आओ वाले ये गौर ये मैदान। बक बक करने से तो नहीं मिर्जा सच्चा साबित होगा ना भाई। दलाइल, ये दलाइल की दुनिया है, दलाइल दो। बाबा कोकी साहब तशरीफ लाए हैं, अल मारूफ मरज़ई मिर्जा जूनियर जेलमी। जी कोकी साहब, मेरा आपसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती साहब बहुत प्यारे इंसान है, आपके मुंह से हमेशा फूल झड़ते हैं। तो सवाल ये है कि एक कलाम है, वो सुए लालाजार फिरते हैं, उसमें आखिरी शेर है जी कि अहमद रजा साहब फरमाते हैं कि अहमद रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो अहमद रजा कुत्ता है तो आप कतूरे हैं? जरा जवाब दीजिए इसका। अच्छा चलो हुण गल जो सुन के जाया जे हैं। हाँ मैं सुन में जाना ही नहीं है बेटा जी, मैं इधर बैठा है, म्यूट नहीं करना बस। अच्छा म्यूट अपनी बारी पे म्यूट करिएगा प्लीज। जी जी, अब आप सवाल कर लिया, म्यूट करिए। खुद ही म्यूट करो ना। लो जी जी जी, शाह जी अगर बदतमीजी करेगा वो तो फिर हम करेंगे ना। आप बात जारी रखिए जी। अच्छा मुझे तो सिर्फ एक चीज पूछनी है बाबा कोकी मरज़ई साहब, आप वो राफजी जो है, आप भी राफजी हैं और वो राफजी हसन काज़मी के आप चमचे हैं, दाया टट्टा जिसको कहते हैं वो हैं। अच्छा गुजारिश ये है कि जब हम कादियानियों से बात कर रहे होते तकलीफ तुम लोगों को क्यों होती है, मरज़इयों राफजियों को? बस मुझे तो इस सवाल का जवाब दो बस। नीचे जो तुम बक बक कर रहे थे वो सब कोई रिकॉर्डिंग पे आ चुका है। अच्छा बता जरा, तुझे तकलीफ, मैं उस मरज़ई कादियानी से बात कर रहा हूँ ते तेरे मैं कह रहा हूँ वो
हाँ जी उसमें बोलो क्यों जवाब तकलीफ हो रही है? दो हाँ सर, जवाब दे सकता हूँ दबो जी, दबो, खुल के सर। दबो पहली जवाब। तो बात यह है कि जब आप वो कादियानियों कज़ाबों के खिलाफ बात कर रहे थे ना, मैं नीचे आपके लिए ही अल्फाज अच्छे इस्तेमाल कर रहा था, मुफ्ती जी आई लव यू, मुफ्ती जी वाह वाह जिंदाबाद, कादियानी लानत, ठीक हो गया, ये रिकॉर्ड जरूर देखिएगा। और दूसरी जो आपने टट्टे वाली बात की, तो आपकी तो अपनी शक्ल आला हज़रत के टट्टे जैसी है ना, तो लिहाजा आप जो है ना वो मेरे सवाल का जवाब दें कि वो कुत्ता है अहमद रजा खान और आप कतूरे हैं, फिर बताइए। अच्छा मेहरबानी जवाब दो। माइक म्यूट। चलो बकौल तुम्हारे के तुम वो कादियानियों को काफिर कह रहे थे या कुछ भी कह रहे थे, पहली तो बात ये झूठ है। मिर्जा जूनियर जेल में तुम्हारा बाबा तो ये कहता है कादियानियों को यहूदन सारा थे, बदतर तो ना कहो ना है, मानो ना मन फिर मरदैया। सर मेरे सवाल का चल यार एक मिनट ठहर दे जाना, माइक ते म्यूट करना। इंज नहीं भाई बाबा को की इंज ते नहीं मरदैई, इंज ते नहीं भाई, इंज नहीं। गल अपनी अपनी है ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਕੋਈ ਯਹੂਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਬਦਤਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਨੀ ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੋਨੀ ਜੇ ਕੀਤਾ है। तो तुम ये सुन लो जरा, फिर ना कहना कि कोई गप मारी है मौलवी ने। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने समझ आई कि नहीं, जो है वो इशारे ऐसे जरूर दिए। हाँ जी, वो तो कह रहा है कि भाई उन्होंने कोई नहीं, गांधी ने भी किया है तो मैं भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। तो नहीं, उन्होंने ये बोला है, गांधी साहब का मतलब बयान किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं भी उन्होंने नाल हां। अल्फाज मुझे जरूर सुनाओ और मेरे अच्छा ये लो दोबारा सुन लो। वो कहता बी गांधी ने, एक मिनट चुप ते करना, और चुप ते कर जरा, मैं अब दलील देने लगा। वो कह रहा है बी। अब ये देखो मिर्जा जूनियर जेल में ये कहे, एक मिनट माइक म्यूट कर, तावले ना हो इन्हें। मिर्जा जूनियर जेल में ये कहे कि देखो जी मिर्जा कादियानी ने भी पिठ मरवाई थी तो मैंने भी मरवाई। तो ये बी जो होता है ना, ये तायीद होती है कि हाँ जैसा वो है वैसा ही मैं हूं। तो वो गांधी के लिए वो बोल रहा है बी। सुन लो जरा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही उनका भी मौकफ यही है, उनका भी म्यूट करे ना। उनका भी मौकफ यही है कि उससे उनका भी मौकफ यही है कि म्यूट कर ले। उनका भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही, उनका भी मौकफ यही है। सुन लिया मैंने, आप म्यूट करिए। बहुत अच्छी बात, अच्छे बेटे की तरह ना म्यूट करके बैठिए। बात यह है कि उन्होंने कहा उनका भी, क्योंकि उससे पहले वो किसी और का मौकफ सुना रहे थे कि उनका है, और गामदी साहब का भी। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरा मौकफ भी यही है, ठीक हो गया। और दूसरी बात जो है वो मेरा सवाल वो एक और आगे ले लिए कि उन्होंने अपने पिठ मरवाने वाली बात आपने की है ना, तो आला हज़रत का फतवा है कि नाबालग बच्ची के साथ ज्यादती करने से रोज़ा नहीं टूटता। तो क्या आपकी छोटी नाबालग बच्ची से अगर कोई ज्यादती करे तो उसका रोज़ा टूटेगा या नहीं, इसका भी जवाब देना आपने। और जो मैंने आपसे पूछा है कि आला हज़रत बोल रहे हैं कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो अगर आला हज़रत कुत्ता है तो फिर आप कतूरे हैं। ये दो बातों का प्लीज ईमानदारी से जवाब दे दें। मैं म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा चलो फिर इंज ते फिर इंज ही सही, हुण की करिए फिर। हाँ जी, आजाद कर दिया हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मेरी दूसरी आईडी जो मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहे कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब जो मोहम्मदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है
कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। चलो हुण मैनू दस, तेरी माँ अगर ख्वाहिश करे कि मुझे एक से ज्यादा 4 शोहर मिले, तो अल्लाह ये तेरी माँ की ख्वाहिश पूरी करेगा कि नहीं? उसको 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं? और बात तेरे साथ पुत्र करनगे असद आया है ते ओ आंदे ने ना जैसा बात आपकी मेरी हो रही है। चलो भाई असद नहीं, गल बात कर। आपकी उनकी हो रही है। इधर आए ना जरा। आपने कहा जी गामदी साहब बी। मुफ्ती साहब सबर 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 गामदी साहब बी वाला जो हवाला था, गामदी साहब बी, जब वो गामदी साहब के अलावा किसी और की बात उसको करने की पड़ी क्यों, या क्यों वकालता कर रहा गामदी साहब दियां ते किसे होर दियां? बेटा बूटा नहीं करना, मैं बड़ा बदतमीज आदमी हाँ, समझ गया? वो जवाब नहीं देंदे, मैं मुंह दे अंदर रख देना होना वा। मुफ्ती साहब से जवाब लेने दो। मैं जवाब दे रहा वा, मैं जवाब दे रहा वा। ਤੁਸੀਂ और मुफ्ती साहब ਦਾ ਜਵਾਬ मेरी एक गल याद रखी, अपने वालिद जी दी तू डीपी लाई है ना, ओनू जाके मेरा नाम पूछी, तेन दसेगा। मैं लुल्ला मुंह च रख के बकवास करवाना होना, जवाब लेना होना। बंदे दा पुत्र बन के ना ते तमीज दे नाल गल करेगा ते तमीज दे नाल जवाब लेगा, नहीं ते मैं इत्थे कुत्ता बना के घड़ीसांगा तैनू मरज़ैया। मैनू ए दस कि मां नू 4 खसम दुआ के तू राजी है? मैनू